let's begin with the position of minor. Okay? इसको अगर मैं पूरा जो इस पेज से स्टार्ट होके आगे तक जाता है, it is almost of 3 pages, two pages we can say. इसको अगर मुझे समरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताना है तो normally a minor cannot be a partner. Any agreement with a minor is void, जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था. But along with that, we also studied one thing, that a minor can be admitted to the benefits of partnership. Okay, once a minor is admitted to the benefits of partnership, then he will have right to the property and profits of the firm. He can have access to the books of account. He can get a copy and inspection of the books of account. Simple चीज है. Normally एक minor partner नहीं बन सकता. That agreement with a minor is void. But with an exception that a minor can be admitted to the benefits of partnership. Along with that, the second right that a minor is having is minor can have the right to the property of the business, right to the profits of the business, right to access to the books of account, inspection of the books of account, and copy of the books of account. Okay. If any minor is admitted to the benefits of partnership, तो पार्टनर्स के किसी भी एक्ट के लिए we say that act of a partner is act of the firm. Okay, that is capacity of partner to bind the firm. तो किसी भी पार्टनर का एक्ट जब फर्म को बाइंड करेगा तो वो माइनर को भी बाइंड करेगा. Whenever any act of the partner binds the firm, then it will also bind the minor as well. But यहाँ पे माइनर पर्सनली कभी भी लायबल नहीं होगा. Always minor's estate would be liable. Minor's estate in the cases minor का पार्टनरशिप में जितना शेयर है उतना के लिए ही वो लायबल है, उससे ज्यादा नहीं. For example, minor is having 1/4 share in the partnership. उसका पार्टनरशिप में 1/4 शेयर है और बिजनेस को लॉस होता है, वो लॉस होता है say for example 50 lakh rupees का. So for that loss everybody including the minor is liable. but यहाँ पे माइनर के केस में छोटा सा एक्सेप्शन है कि माइनर का शेयर 1/4 है. मतलब अगर बिजनेस का प्रॉपर्टी 40 लाख का है और लायबिलिटी 50 लाख का है तो एक्सेस 10 लाख रुपए में माइनर लायबल नहीं होगा. माइनर क्या कहेगा, मेरा असेट मतलब बिजनेस का टोटल प्रॉपर्टी 40 लाख रुपए का है, उसमें मेरा शेयर 1/4 है, मतलब मुझे प्रॉपर्टी में से 10 लाख मिलना चाहिए और आपका लॉस है या लायबिलिटी है 50 लाख रुपए, इसका 1/4 होता है 12,50,000. सो आई एम लायबल ओनली अप टू 10 लाख. जितना मेरा प्रॉपर्टी है पार्टनरशिप में उतना ले लो. ओके, ये एक्स्ट्रा 2,50,000 मैं पे करने वाला नहीं. माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होगा, हमेशा उसका प्रॉपर्टी लायबल होगा. ओके, माइनर कैन नॉट फाइल a case against other partners unless he is leaving the firm. Unless he is leaving the firm. माइनर अगर फर्म छोड़ के जा रहा है तो ही वो बाकी सारे पार्टनर्स के सामने बुक्स ऑफ अकाउंट या प्रॉपर्टी या पेमेंट के लिए केस कर सकता है. अदरवाइज वो केस नहीं कर सकता है. He cannot file a case. जब वो माइनर था तब उसको पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में एडमिट किया गया. We admitted him to the or her to the benefits of partnership. Now, once that partner attains majority, उसको मेजर बनने के लिए, जैसे हम इंडियन लॉ में ऐसा कहते हैं कि उसका 18 इयर्स का होना जरूरी है. So the day he attains majority or the day he comes to know that I was a partner, I was a minor partner in the firm, the day he attains majority or the day he comes to know
he has a knowledge of his being a minor partner, whichever is later, इनमें से जो भी चीज लेट होती है वहां से लेके 6 months के अंदर अंदर, विद इन 6 months, दैट पर्सन जो मतलब पहले माइनर था और अब वो मेजर हो गया है, उसको विद इन 6 months ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है या फर्म लीव करना चाहता है, whether he wants to continue as a partner or he wants to leave the partnership firm. If he does not make any declaration within 6 months, then he will automatically become a partner in the partnership firm. Okay, तो दो सिचुएशन में वो पार्टनर बनेगा, एक्चुअल मेजर पार्टनर, या तो वो 6 months के अंदर ऐसा एक्सेप्ट कर लेता है that yes I want to continue, या तो वो फेलियर टू गिव नोटिस है, वो नोटिस नहीं देता है कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं या नहीं चाहता हूं, कोई भी एक चीज इलेक्ट नहीं करता है, तो वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा। इन बोथ द केसेस, जिस दिन से वो माइनर पार्टनर बना था, the day from which he or she became a minor partner, that is before 18 years, उस दिन से उसका liability start हो जाएगा। He will be liable from the date from he became a minor partner. Okay, these are the things that we are going to study in this topic. Have a quick revision. Minor as such cannot become a partner because any agreement with a minor is void, but a minor can be admitted to the benefits of partnership. A minor is having right to the property, to the profits of the firm, to check, to have an inspection, to copy the books of account. In the case of firm's liability, only minor's property would be liable. Minor's share, minor's property भी ना बोल के क्या कहेंगे? Minor's share in the firm would be liable. Minor is never personally liable. Okay. Normally, a minor cannot sue other partners unless and until he is severing his connection. वो अपने आप को पार्टनरशिप फर्म से अलग कर देता है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए या पेमेंट के लिए वो बाकी सारे पार्टनर्स के ऊपर केस फाइल कर सकता है। okay? जैसे ही वो माइनर पार्टनर मेजर बनता है, या जिस दिन उसको पता चलता है कि वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना था, ओके, देन फ्रॉम इन दोनों में से जो भी लेटर डेट होगा, वहां से 6 months के अंदर अंदर उसको इलेक्ट करना पड़ेगा कि वो पार्टनर बनना चाहता है एक्चुअल में या नहीं बनना चाहता है। ओके, अगर वो 6 months के अंदर ऐसा कह दे कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, या तो वो फेलियर करता है नोटिस देने में, तो he would be liable from the date he became a minor partner. अगर वो मना बोल देता है कि मुझे पार्टनर बनना नहीं है, then until a public notice is given, he would be liable. उसके बाद और उसको उतना ही शेयर मिलेगा जितना उसका पब्लिक नोटिस के दिन तक का शेयर होगा। He will be eligible for that much share only till the date of public notice. Okay? इतना सारा आपको मैंने डिटेल में डिस्कस किया। इसका वापस इधर एनालिसिस भी लिखा हुआ है, इधर से। तो ये एनालिसिस में वही चीजें लिखी हुई जो मैंने आपको बताई। ओके, मेन चीज ये पढ़ने वाला है, ये वाला और ये वाला। You can take the same in your book. Okay. When such partner becomes मतलब he elects to become a partner, ना एक्सेप्ट करता है कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, या फेलियर टू गिव नोटिस, he also becomes personally liable, क्योंकि अभी वो मेजर हो गया। माइनर था तो उसका प्रॉपर्टी लायबल था, अभी मेजर हो गया तो प्रॉपर्टी के साथ साथ वो पर्सनली भी लायबल होगा। कब से कहां तक? फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ
पार्टनरशिप, मतलब ऑन हिज 16th बर्थ, मतलब 16 साल का वो हुआ तब से लेके वो माइनर पार्टनर था, और उसके बाद जब वो मेजर बना और उसने एक्सेप्ट किया कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ, तो इस डेट से लेके ऑनवर्ड्स उसका लायबिलिटी होगा. ओके. His share in the property and profits shall be the share to which he was entitled to as a minor. उसका as a minor share था 1/4. That will continue. When such person elects not to become a partner, मना बोल देता है, he refuses to become a partner, तो उसका liability continue रहेगा as a minor until he gives public notice. As I told you, जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तब तक उसका लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगा, और उसी दिन तक का उसको शेयर भी मिलेगा. द मोमेंट ही गिव्स नोटिस he will not be liable, and he shall be entitled to sue the partners for his share. जैसे उसने मना बोल दिया ना, he is severing his ties, वो क्या हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म से अलग हो रहा है, तो जब तक साथ में था तब तक केस नहीं कर सकता. जैसे ही अलग हुआ, he can file a case against the other partners for his share. What he is doing, he is severing his ties to get separated. वो अभी पार्टनरशिप फर्म से अलग हो गए. Nothing in this subsections 7 and 8 shall affect the provisions of section 28. नॉर्मली आपको सेक्शंस याद नहीं रहेंगे, है ना, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा. तो अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो इसका मीनिंग भी पता नहीं चलेगा. सेक्शन 28 में क्या लिखा हुआ था, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, एस्टोपल. Okay, so these are the things related to minor. Legal consequences of partners coming in and going out. Coming in का मतलब क्या होगा, एडमिशन. गोइंग आउट का मतलब क्या होगा, रिटायरमेंट, डेथ, एक्सपल्जन. एक्सपल्जन का मतलब होता है निकाल देना, इंसॉल्वेंसी, है ना. दीज आर ऑल गोइंग आउट. तो इन सारे केसेस में पार्टनर्स को क्या राइट्स मिलते हैं, व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू द, क्या तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. लॉजिकली सोचो, है ना, कि कुछ लोगों ने मिलके पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया, काफी सालों तक चला, अब वो किसी नए पार्टनर को ऐड करते हैं. They are making admission of a new partner with the consent of all. तो यूजुअली वो जो नया पार्टनर आया उसके पहले जो कुछ भी हुआ, क्या उसके लिए नया पार्टनर लायबल होगा? No. Partnership firm was started way back in 2010 and I am being admitted to the partnership firm today. Will I be liable for the previous X or X now onwards? X now onwards. Now onwards. But अगर मैं सामने से ऐसा कहूँ, if I agree that I want to make myself liable from a previous date, then law allows the same. अगर इनकमिंग पार्टनर ऐसा कहता है कि मैं आज से पहले जो फर्म ने लायबिलिटीज इनकर की है उसके लिए भी लायबल रहना चाहता हूँ, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है, उसके लिए लॉ मना नहीं बोलता. तो नॉर्मली क्या है, जो भी नया पार्टनर है वो जिस दिन फर्म में आता है उसी दिन से वो लायबल बनता है. बट अगर वो उसके प्रीवियस डेट से अपने आप को लायबल बनाना चाहता है देन इट इज अलाउड. ऐसा ही रिटायरमेंट के केस में है. ओके, तो रिटायरमेंट के केस में पार्टनर जिस दिन तक पार्टनरशिप फर्म में है, द डे till which that person is there in the partnership firm, he will be liable. The day he gives public notice, अगर वो एक्टिव पार्टनर है तो, ना,
अगर वो एक्टिव पार्टनर है तो वो पब्लिक नोटिस देगा दैट आई एम लीविंग द पार्टनरशिप फर्म टुडे और द डेट मेंशन इन द नोटिस। मतलब मैं आज से पार्टनरशिप फर्म छोड़ रहा हूँ या आज से 10 दिन के बाद, फॉर एग्जांपल आई विल बी लीविंग द पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम 25th of June. So after 25th of June, that retired partner would not be liable. Okay? डेथ के केस में ऐसा कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई उसके बाद भी फर्म ने उसको लायबल बनाने की कोशिश की तो वो पॉसिबल नहीं है। So there are certain provisions that we are going to study in relation to admission, retirement, death, expulsion and insolvency. Okay? नॉर्मली ये सारी चीजें आपने अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा लेवल पे की हुई है ना? जो मॉडिफिकेशन से उस पर ध्यान देना है। Whatever is the modification, please be careful. Okay? Introduction of a new partner, of a partner. ये हो गया एडमिशन। अगेन देखो वर्ड कौन सा लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एंड टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30, नो पर्सन shall be introduced as a partner without the consent of all. अभी इसमें subject to provisions of section 30 ऐसा बोला है ना? सेक्शन 30 में क्या पढ़ा था? माइनर। So minor cannot be admitted as a partner. तो उस प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी भी पर्सन को फर्म में ऐड करना चाहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो सबका कंसेंट होना जरूरी है। सबका साथ और सबका विकास। इसके साथ क्या ऐड किया नया? सबका विश्वास होना चाहिए। सो कंसेंट ऑफ ऑल इज नेसेसरी। नंबर 2, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30, a person who is introduced as a partner into a firm does not thereby become liable for any act of the firm done before he became a partner. Obvious है, मैं 13th June 2020 को पार्टनर बना तो उसके पहले जो भी फर्म ने एक्ट किया है उसके लिए मैं यूजुअली लायबल रहता नहीं हूँ। ओके, स्टिल देयर आर, ये एनालिसिस में लिखा हुआ है। The liabilities of the new partner ordinarily, ये सारे वर्ड्स है ना बहुत डेंजरस है। ये ऑर्डिनरी वर्ड निकाल दो ना तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। सो ऑर्डिनरीली, यूजुअली, तो यूजुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स एज अ पार्टनर unless he agrees to be liable for obligations incurred by the firm prior to the date. अगर वो खुद ऐसा चाहता है कि नहीं मैं प्रीवियस जो आपके एक्ट है उसके लिए भी लायबल रहना चाहता हूँ, देन इट इज फाइन, बट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर हैं, उन्होंने क्रेडिटर जेड के पास से गुड्स खरीदे हैं। ओके, अभी नया पार्टनर आता है, लेट्स से ए, है ना? तो अभी 4 पार्टनर हो गए और इन लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाई नई वाली, सब कुछ नया लिखा फिर से, और इसमें ऐसा लिखा और इन्हें ऐसा माना भी सही कि आपने जो जो भी क्रेडिटर्स के पास से गुड्स खरीदा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं उसके लिए भी लायबल रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम लायबल, वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ लायबल, ओके, एंड आई अग्री विद दिस पार्टनरशिप डीड। इन लोगों ने अग्री किया ना, उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, क्योंकि इसमें सिर्फ PQR इन्वॉल्व नहीं है, इसमें Z भी इन्वॉल्व है। ओके, तो अगर A ने हाँ कहा कि मुझे प्रीवियस एक्ट के लिए भी लायबल रहना है, ओके, Z को चलो ये पता चला कि A नया पार्टनर आया है, ओके, बट Z ने क्रेडिट कब दिया था? जब PQR पार्टनर थे, बराबर? तो Z सिर्फ और सिर्फ PQR को ही लायबल बना सकता है। Z कैन मेक ओनली PQR लायबल। A, PQ और R, इनके बीच में क्या होगा वो लोग जाने। थर्ड पार्टी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट PQR ओनली।
third party cannot file a case against A even if A has admitted. और ये फैक्ट इन लोगों को ही पता है. अगर यही बात ये सब लोग मिलके जेड को बता देते हैं कि देखो हमारा नया पार्टनर आया है, हम लोग भी प्रोविजन जानते हैं कि नया पार्टनर जिस दिन से आया है उसी दिन से वो लायबल होगा, पर ए अपने आप को प्रीवियस ट्रांजेक्शन के लिए भी लायबल बनाना चाहते हैं और उस प्रीवियस ट्रांजेक्शन में तुम भी एक हिस्सा हो, यू आर ऑल्सो अ पार्ट, तो हम तुमको ये फैक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं. नाउ वी ऑल फोर आर लायबल टुवर्ड्स योर डेट. ओके, अब जेड के पास दो चॉइस है ना, कि वो इस नए अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट करे. तो जेड बोलेगा भाई मुझे ये सब चीज में पढ़ना नहीं है, मैंने तो तुमको क्रेडिट दिया था, मैं तुम्ही को लायबल बनाऊंगा. ओके, तुमने मुझे बताया, दिस फाइन, बट आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ. ओके, तो अगेन जेड कैन फाइल अ केस अगेंस्ट पीक्यूआर. और जेड बोलता है ठीक है, मुझे क्या मतलब है, मुझे तो मेरे पैसों से मतलब है ना, ए को जो करना है वो करे. अगर वो ऐसा कहता है कि ठीक है ना, पहले तुम 3 लायबल थे, अब तुम 4 लायबल हो, तो नया पार्टी आया, देयर इज अ न्यू पार्टी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा नोवेशन. टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुई, पहले 3 लायबल थे, अभी 4 लायबल है. तो नोवेशन में अदर पार्टी का भी कंसेंट होना चाहिए. okay? उसकी कंसेंट के बिना हम ए को लायबल नहीं बना सकते. This section does not apply to a partnership of 2 partners which is automatically dissolved by the death of one. 2 पार्टनर हैं, 2 में से किसी एक की डेथ हो गई तो 2 का होना तो जरूरी है. The firm will automatically get dissolved. चलो, दूसरा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. How a partner retires, पहले वो डिस्कस करते हैं. May retire with the consent of all or in accordance with an express agreement by the partners. ना, जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग. तीसरा, if the partnership is at will, है ना, then by giving notice in writing. ऐसा नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में to all the other partners of his intention to retire. 3 चीजें हैं, with the consent of all or in accordance with an express agreement or where the partnership is at will by giving notice in writing to all the other partners. अभी रणबीर कपूर चले गए, गाना था कौन सा था, चलता हूँ दुआओं में याद रखना, तो उसको हम याद रखेंगे दुआओं में. चलो, अभी दूसरा पार्ट. A retiring partner may be discharged from any liability to third party for act of the firm done before his retirement by an agreement made by him with such third party and the partners of the reconstituted firm, and such agreement may be implied by a course of dealing between the third party and the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement. एडमिशन में हमने ये पढ़ा था कि जिस दिन नया पार्टनर ऐड होता है उसी दिन से वो लायबल होता है, बट अगर वो अपने आप को इसके पहले वाले एक्ट के लिए लायबल बनाना चाहता है तो दैट इज पॉसिबल. पर सिर्फ पार्टनर्स को पता होना चाहिए वो जरूरी नहीं है. पार्टनर्स को जिन जिन लोगों को ये ट्रांजेक्शन अफेक्ट करते हैं उनको बताना पड़ेगा. हमने तो सिर्फ एक क्रेडिटर का एग्जांपल लिया था, ऐसे नंबर ऑफ क्रेडिटर्स हैं तो वो सबको बताना पड़ेगा, उनका भी कंसेंट लेना पड़ेगा, तो ए लायबल है. इन अ सिमिलर मैनर, जब इन तीनों में से आर रिटायर होता है, तो से फॉर एग्जांपल आर विल रिटायर ऑन 15th जून, उसने नोटिस दे दिया कि मैं 15 जून से रिटायर होगा, तो जब तक वो फर्म में था
तब तक तो वो लायबल होगा ही। नॉर्मली हम लोग ऐसा ही पढ़ के आए कि 15 जून तक जो भी लायबिलिटी इनकर होगा उसके लिए आग लायबल है। पर अगर बाकी के पार्टनर्स ऐसा अग्री करते हैं कि अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो गया तो रिटायरमेंट के बाद तो वो वैसे भी लायबल नहीं है, बट रिटायरमेंट के पहले के एक्ट के लिए भी हम उसको लायबल नहीं बनाना चाहते, हम उसको फ्री कर देना चाहते हैं। वी वांट टू मेक हिम फ्री। जो सिर्फ इन लोगों के मानने से नहीं चलेगा। ओके, आर PQ&R उन लोगों ने जिन जिन लोगों के साथ डील किया था उनको बताना पड़ेगा कि आर रिटायर हो गया है, इस दिन से रिटायर हो गया है, उसको हम फर्म की जितनी भी लायबिलिटीज है उसमें से फ्री करना चाहते हैं। क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है? अगर थर्ड पार्टी कंसेंट देता है तो ही आर फ्री हो जाएगा, अदरवाइज 15 जून या उससे पहले वाले एक्ट के लिए वो ऑर्डिनरीली, कौन सा वर्ड पढ़ते हैं हम लोग, ऑर्डिनरी, तो वो लायबल होता ही है। बट अगर PQ मना बोले कि नहीं ठीक है तुम जाओ, मतलब बात खत्म, बाद के एक्ट के लिए या प्रीवियस एक्ट के लिए तुम लायबल नहीं रहोगे, हम ये एक्सेप्ट करते हैं, थर्ड पार्टीज को बताते हैं, थर्ड पार्टीज ने भी मान लिया कि ठीक है तुम आय को फ्री करना चाहते हो, हम भी फ्री कर देते हैं। इन फ्यूचर प्रीवियस एक्ट के लिए अगर मैं केस फाइल करूंगा तो सिर्फ P और Q के ऊपर करूंगा, R के ऊपर नहीं करूंगा। ऐसा थर्ड पार्टी एक्नॉलेज करता है। देन फॉर सब्सिक्वेंट एक्ट एज वेल एज प्रीवियस एक्ट R would not be liable. Moving forward, notwithstanding the retirement of a partner, he and partners continue to be liable as partners to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before retirement until public notice is given. R सिर्फ PQ को बताएगा कि मैं रिटायर होना चाहता हूं, ऐसा नहीं है, उसके लिए भी क्या देना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस। ओके, बट ये पब्लिक नोटिस ओनली उसी केसेस में नेसेसरी है अगर आर एक्टिव पार्टनर है तो, ठीक है। अगर आर स्लीपिंग पार्टनर है तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं। पब्लिक नोटिस इज नेसेसरी ओनली व्हेन द partner going out is a active partner, provided that the retired partner is not liable to any third party who deals with the firm without knowing that he was a partner. चलो एक और नई चीज, ये फर्म था, इन लोगों ने Z के साथ डीलिंग किया था, बट Z ये कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आर पार्टनर है, तो आर के होने नहीं होने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैंने तो P और Q को देख के ही गुड्स दिया था। तो आर के रिटायरमेंट की वजह से Z को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि Z को पता ही नहीं था, विदाउट नोइंग दैट ही वाज अ पार्टनर, सो अ रिटायर्ड पार्टनर वुड नॉट बी लायबल।